Good morning, students. Myself, Mr. Karthik K. Patel, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic. Subject name Fundamental of Digital Electronics. Unit name Binary System. Today's topic is Numbering System. Now, we are start. The today's objective of the session is conversation of numbering system. In a last session, we are convert that there is a two types of conversation. First one is decimal to binary system and octal to decimal system. Now we are start the another two methods for numbering conversion. First one is a hexadecimal system to the decimal conversion and decimal conversion to the binary conversion. So step by step we are study the two types of conversation. So total 12 type of conversations. Here we are complete the first and second, and now we are start the third one and fourth one. In a hexadecimal to the decimal conversion, तो जैसे ही हमने बाइनरी कन्वर्जेशन टू द डेसिमल कन्वर्जेशन स्टडी किया, ऑक्टल कन्वर्जेशन टू द डेसिमल कन्वर्जेशन स्टडी किया, तो सेम दैट हेक्साडेसिमल टू द decimal conversion. In this method, each hexadecimal digit number is multiplied by the position of weight base 16. Get it? And the product terms are added, obtain the decimal number. तो सेम जो बाइनरी और ऑक्टल कन्वर्जेशन था, वैसे ही हम हेक्साडेसिमल टू द डेसिमल कन्वर्जेशन स्टडी करेंगे. तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं तो इजीली हमको पता चलेगा. तो हियर example is that D56 base 16 is equal to fill in the gaps 10. The 16 is represent the hexadecimal number and 10 is represent the decimal number. Now we start. Suppose that we start answer D56 16. How we write? First जो फर्स्ट नंबर है उसको हाइड कीजिए, उसके बाद के जो नंबर है उसको काउंट कीजिए. तो यहाँ 2 है, दैट मीन्स D मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है हेक्साडेसिमल का 16, 16 रेज टू 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 0. Here put the value of D. So what is the value of D? The value of D is 13. How? Here A, B, C, D, E, F. यहाँ लास्ट कौन सा था 9. 9 के बाद कौन सा आएगा 10, 11, 12, 13, 14 और 15. तो here the D value is 13. So we will put the D is 13 multiplied by 16 raised to 2 plus 5 multiplied by 16 raised to 1 plus 6 multiplied by 16 raised to 0. Now 13 multiplied by 16 raised to 2. तो 16 multiplied by 16 तो कितना होता है 256 plus 5 multiplied by 16 raised to 1, that means 16, plus 6 multiplied by 16 raised to 0, so we put 1. Now what is a 13 multiplied by 256? तो 13 multiplied by 256, तो क्या आंसर आता है 3328 प्लस 16 multiplied by 5, आंसर क्या आएगा 18 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 6. तो आंसर क्या होगा, तीनों का एडिशन हम करेंगे तो आंसर आएगा 3414 ब्रैकेट ओवर, इसको बोलेंगे 10. दैट इज द कन्वर्जेशन ऑफ hexadecimal number system into the decimal system. Now again we are take the another example, so you will better to know how to convert the hexadecimal to the decimal numbering system. Here the answer
BCD 0 ब्रैकेट ओवर 16। तो हियर जितने नंबर दिए उसका फर्स्ट जो डिजिट है उसको हाइड कीजिए, जितने नंबर रहे वो आपके बेस का फर्स्ट नंबर। तो क्या होगा, b मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 3 प्लस c मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 2 प्लस d मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 0। अब देखते हैं b। तो b की वैल्यू क्या है, 11 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 3 प्लस c की वैल्यू तो 12 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 2 प्लस d तो 13 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 0। अब 16 का क्यूब कितना होता है, 11 मल्टीप्लाई बाय 4096 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 256 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। हमने क्या किया, ये जो 16 रेज टू क्यूब है तो वो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो उसका आंसर लिखा 16 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, उसका आंसर लिखा 16 स्क्वायर रेज टू 1, उसका आंसर लिखता और 16 रेज टू 0 उसका आंसर लिखा। नाउ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मैथमेटिकली कॉमन फंडामेंटल्स है उसका हम यूटिलाइज करेंगे। तो क्या होगा, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 256 तो होगा 3072 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 16 होगा 208 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या हो जाएगा 0। देन आफ्टर ये तीनों का हम एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 48336 ब्रैकेट ओवर 10। तो ये हुआ हेक्साडेसिमल नंबर टू द डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। नाउ जैसे ही हमने बाइनरी ऑक्टल में फ्रैक्शनल नंबर का किया था तो सेम दैट यहाँ भी हमको क्या करना है, फ्रैक्शनल नंबर का भी कन्वर्जेशन करना है। तो 16 रेज टू माइनस 1, 16 रेज टू माइनस 2, 16 रेज टू माइनस 3, तो दैट मीन्स व्हाट 1 अपॉन 16 रेज टू 1, 1 अपॉन 16 रेज टू स्क्वायर, 1 अपॉन 16 रेज टू क्यूब। तो ये जो आंसर आए राइट उसका डिविजन करके 1 डिवाइड बाय 4096, 1 डिवाइड बाय 256, 1 डिवाइड बाय 16, तो ये उसके आंसर्स है। तो उसका यूटिलाइज करके अब हमको फ्रैक्शनल नंबर का भी कन्वर्जेशन करना है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है 0.90b, तो उसका होगा ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू माइनस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू माइनस 2 प्लस b मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू माइनस 3। अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ b की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ जो b है उसकी जगह कौन सी वैल्यू आएगी 11, गेट इट। 9 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू माइनस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू माइनस 2, यहाँ 0 से तो कुछ नहीं आएगा तो 0 b, दैट मीन्स 11 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू माइनस 3। अब उसको ऐसे हम भी लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाय 16 प्लस 0, 11 डिवाइड बाय 16 रेज टू माइनस 3, दैट मीन्स 16 का क्यूब। तो उसका कैसे हम आंसर लाएंगे, तो 9 डिवाइड बाय 16 करेंगे, गेट इट, तो उसका आंसर आएगा 25625 प्लस 11 डिवाइड बाय 16 का क्यूब, तो 16 रेज टू 3 करेंगे हम तो उसका आंसर आएगा 4096। तो क्या आ जाएगा 0.5625 प्लस 11 डिवाइड बाय, तो उसका क्या आएगा 0.000268। ये दोनों को हम एडिशन करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0.5625, गेट इट। ये आपका आंसर आता है 2
68 ब्रैकेट ओवर 10। तो यहाँ हमको फ्रैक्शनल नंबर का करना है, पॉइंट के बाद की वैल्यू का करना है। तो यहाँ रेस टू -1 -2 -3, अब माइनस है तो उसको प्लस करने के लिए डिवाइड करेंगे, या यही ये टर्म को ऐसे भी आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 16 रेस टू -1। तो 16 रेस टू -1 जो है उसका आंसर क्या आएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 0.0625, ऐसे भी हम मल्टीप्लीकेशन करके कर सकते हैं। दिस इज द कॉमन मैथमेटिकल इक्वेशंस। नाउ वी take the another example for fractional number। तो यहाँ आपको दिया हुआ है bb.ccd 16, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम नॉर्मल नंबर का कन्वर्जेशन करेंगे। तो क्या होगा, b मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 0 प्लस यहाँ आएगा c, तो c मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू -1 प्लस c मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू -2 प्लस d मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू -3। अब हमको b और c की वैल्यू और d की वैल्यू पुट करनी है, गेट इट। तो b की वैल्यू क्या है 11, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू माइनस प्लस रेज टू 1, 11 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 0 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू -1, 12 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू -2 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू -3। ये ब्रैकेट में है, हाँ ये सब ब्रैकेट में है। अब उसको हमको कन्वर्जेशन करना है। तो क्या होगा 11 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 11 16 रेज टू 0 दैट मीन्स 1 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 0.0625 प्लस 12 मल्टीप्लीकेशन में अब क्या करना है 16 रेज टू -2 करना है। तो क्या हो जाएगा 0.00390 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू -3, क्या हो जाएगा 0.00024। अब उसको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 16 होगा क्या 176 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 11, देन आफ्टर 12 मल्टीप्लाई बाय 0.625, तो आंसर क्या होगा आ जाएगा 0.75 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 0.00390, तो आंसर क्या होगा 0.0468 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 0.00024, तो क्या आ जाएगा आंसर 0.00031। अब इस सभी का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा तो आंसर आता है 187.79 ब्रैकेट ओवर 10। तो ये उसमें हमको कैलकुलेटर का यूटिलाइज करना है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर या सिंपल कैलकुलेटर आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द मैथमेटिकली ऑपरेशन ऑफ एडिशन, गेट इट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे ये सिस्टम कन्वर्जेशन होता है। Now we start the another method, decimal to the binary conversion। अभी तक हमने जो 3 मेथड स्टडी किया, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टा टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू द डेसिमल। इसमें क्या करना था, जो भी बेस है उससे मल्टीप्लिकेशन करना था। नाउ द न्यू मेथड्स, डेसिमल टू द बाइनरी कन्वर्जेशन। तो डेसिमल टू द बाइनरी कन्वर्जेशन में रूल क्या है, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड बाय क्या करना है 2, और जो 2 आएगा राइट
कब तक करना है डिवाइड बाय 2? जब तक 0 ना आए तब तक। आपको कोई भी वैल्यू दी हो डेसिमल नंबरिंग सिस्टम में, आपको कोई भी वैल्यू दी हो 2 डिजिट की, 3 डिजिट की, 4 डिजिट की या 5 डिजिट की, उसको क्या करना है? सबको 2 से डिवाइड करना है। कब तक? जब तक 0 ना आए तब तक। गेट इट? और रिमाइंडर्स आर अरेंज इन अ रिवर्स ऑर्डर। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल से हमको इजीली पता चलेगा। ओके, एग्जाम्पल से हमको क्या पता चलेगा? इजीली हम पता चलेगा। तो यहाँ आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल 112 डिवाइड बाय 112 डेसिमल नंबर, और उसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में। तो कैसे करते हैं? तो पहले जो 3 मेथड्स की है उससे अलग है। तो क्या करना है? सबसे पहले तो जो नंबर है यहाँ आपको थोड़ी स्पेस रखनी है और लिखना है 112। फिर आपको 3 लाइन करनी है ऐसे, गेट इट? और उससे ऐसे डिवाइडेशन का पोर्शन करना। अब क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि कन्वर्जेशन किस में करना है? बाइनरी में। तो ऑलवेज कन्वर्जेशन करना है, तो यहाँ 2 से डिवाइड करना है। तो 112 से हम डिवाइड करेंगे, गेट इट? तो यहाँ अब हम कैलसी रखते हैं। 112 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा? 56। तो यहाँ लिखना है 56। तो 56 डिवाइड बाय 2, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 0। फिर इस 56 के नीचे एक लाइन करना है, फिर से डिवाइड करना है। तो 56 डिवाइड बाय 2 क्या हुआ? 28। तो फिर से यहाँ क्या लिखना है? 28 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 रिमाइंडर। फिर 28 को डिवाइड करना है 2 से, तो क्या हुआ? 14। सॉरी, 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ होगा 14, यहाँ आ जाएगा 0। अब 14 को डिवाइड करना है तो हो जाएगा 7। 7 मल्टी डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 0। अब 7 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ आप देखना 7 से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 3.5। क्या आता है? 3.5। बट हमको तो क्या करना है? रेगुलर नंबर लिखना है। तो यहाँ मैं ऐसे लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है? 6, राइट? 3 मल्टी पॉइंट नहीं लिखना है। तो 3 जो आगे का जो नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं बट नॉर्मल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर को आप अलग करते हैं तो क्या होगा? 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा? 6। तो रिमाइंडर कितना हुआ? 1 बचा, तो यहाँ आपको 1 लिखना है। फिर आपको अगेन डिवाइडेशन करना है, तो क्या करेंगे? 3 आया तो 3 डिवाइड बाय 2 तो कितना आता है? 1.5। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 2 तो क्या होता है? 2। और इसमें कितना रिमाइंडर बचा? 1, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। और फिर अगेन कि यहाँ क्या करना है? जो आपकी ये वैल्यूज है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता है तो उससे जो कम वैल्यू आती है तब उसके नीचे क्या लिख देना? 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये 1 है वो यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपको लास्ट में यह 1 बचे तो फिर ये यहाँ लिखना है। गेट इट? तो मोस्टली हर एक डिवीजन होगा तो उसमें लास्ट में 1 तो आएगा ही आएगा। गेट इट? तो ये यहाँ आपको 1 लिखना है। फिर ये जो आपका फाइंड आउट किया हमने, उसको इसको हम कैसे लिखेंगे? नीचे से ऊपर। तो कैसे होगा नीचे से ऊपर? नीचे से लिखेंगे तो कितना है? 1 1 1, फिर 1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4 ब्रैकेट ओवर 2। दैट मीन्स कि ये क्या हुआ? डेसिमल नंबरिंग सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जेशन किया। गेट इट? इट्स अ वेरी सो सिंपल एग्जांपल, इट्स नॉट अ वेरी टफ। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं तो उससे और ज्यादा आपके डाउट्स होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। सपोज के हुआ है 537, तो आपको क्या करना है? 537 इसको लिखना है। फिर क्या करना है? 2 लाइनें ऐसे खींचनी है और इसके ऐसे करना। गेट इट? अब क्या करना है? 237, तो यहां से हम फिर से कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो क्या करना है? 537 डिवाइड बाय 2 कितना आता है? यहाँ क्या हुआ? पॉइंट में आया।
क्या हुआ, पॉइंट में। तो पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको हम लिख लेते हैं 268 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना होता है 536। तो यहाँ कितना एक बचा, रिमाइंडर 1। अगेन हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो जो आंसर है 268 डिवाइड बाय 2, तो कितना आता है 134। तो पॉइंट में नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। फिर और करना है 134 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 67, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। फिर 67 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पॉइंट में आता है, क्या आता है 33.5। तो सिर्फ हमको क्या लिखना है यहाँ 33, और जो 0.5 बचा तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय हम 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। दैट मीन्स यहाँ क्या आया 1। 33 डिवाइड बाय 2 तो कितना हुआ 16.5, तो हमने 16 लिखा और जो बचा है 1। दैट मीन्स आपको क्या सिंपल, यहाँ जो हम डिवाइड बाई कर रहे हैं यहाँ हुआ 16, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 4। 4 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 8 0। अगेन 2 डिवाइड बाय करेंगे तो हो जाएगा 0, और फिर क्या करेंगे 1 2 तो 0। अब क्या आ गया 1 आ गया, तो 1 आ गया लास्ट में, तो यहाँ करना है 0, यहाँ लिखना है 2, और ये जो 1 है उसको ट्रांसफर करके यहाँ लिख देना है 1। गेट इट। तो इट्स अ वेरी सो सिंपल प्रोसेस डिवाइड। तो जो भी आपको नंबर दिया है तो पहले आपको ये 2 लाइनें खींचनी है, फिर बाद में यहाँ 2 लिखना है, उससे कैलकुलेटर से 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। जब पॉइंट वाला आंसर आए उसके सामने ही ये 1 आएगा। ये 1 कब आएगा, जस्ट उसके पॉइंट के सामने होगा। पॉइंट वाला जो आएगा, जैसे कि यहाँ आया था 268.5, तो यहाँ 268 लिखना है और यहाँ क्या लिखना है 0.5, दैट मीन्स कि 1, क्योंकि 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 1। तो जो जहाँ 0.5 आता है वही ये 1 1 आएगा, बाद में सभी जगह क्या आता है 0, और लास्ट में 1 आना ही चाहिए। गेट इट। और फिर ये आ गया तो यहाँ से नीचे से अब क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। गेट इट। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 4 टाइम 4 टाइम्स 0 1 1 2 3 4, फिर 1 1, फिर 0 1 ब्रैकेट ओवर 2। दैट मीन्स ये क्या हुआ, डेसिमल कन्वर्जेशन टू द बाइनरी कन्वर्जेशन। तो इट्स अ वेरी सिंपल कन्वर्जेशन कि डेसिमल नंबरिंग सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये है आपकी प्रोसेस। गॉट इट। नाउ फ्रैक्शनल नंबर, जैसे ही हमने आगे 3 मेथड स्टडी किए तो उसमें फ्रैक्शनल नंबर था, तो सेम दैट यहाँ कैसे फ्रैक्शनल नंबर कन्वर्ट होगा। तो यहाँ क्या करना है, जैसे आगे वाले में डिवीजन किया तो यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। कब तक, जब तक 0 ना आए तब तक। गेट इट। जब तक 0 ना आए तब तक हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। और सेकेंड कि सपोज मल्टीप्लिकेशन में 0 आता ही नहीं है बट रिपीट टू रिपीट नंबर आता है तो भी आपको स्टॉप करना है। गेट इट। रिपीट टू रिपीट नंबर आएगा तब आपको स्टॉप करना है। गेट इट। तो हम ये देखते हैं एग्जांपल से ही हमको इजीली पता चलेगा कि कैसे कन्वर्जेशन होता है। सपोज आपको यहाँ दिया हुआ है ये नंबर 0.78125। गेट इट। तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कैसे क्या आएगा, तो यहाँ हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। 0.78125 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या आया 156.65625। गेट इट। ये आपका आ गया। तो अब क्या करना है, यहाँ आप देखिए कि हमको क्या करना है, सिर्फ फ्रैक्शन वाले नंबर लेने। तो यहाँ क्या हुआ, कैरी 1, तो यहाँ क्या करना है, इज इक्वल टू लिखना है 1। फिर 1 के अलावा जो नंबर है वो नीचे फिर से लिखना है। 0.5625 ये जो नंबर है वो यहाँ आ गया, उससे फिर से मल्टीप्लाई बाई 2 करना है।
तो हम क्या करेंगे 0.5625 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हुआ 1.125। अगेन ये 1 को यहाँ लिखना है और बीचा जो बचा 0.125 तो 0.125 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 0.125 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या आ गया 0.25, तो यहाँ 0 आया इसलिए हम क्या लिखेंगे 0। फिर 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या आ जाएगा 0.5, तो यहाँ क्या करेंगे 0 लिखेंगे। अब 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या होगा 1.0, दैट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब ये 1 आ गया तो नीचे क्या आ जाएगा 0, दैट मीन्स कि हमारा लास्ट जो डिजिट है 0, 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, दैट मीन्स यहाँ स्टॉप होगा। फिर क्या लिखना है कि जैसे डिवीजन में, गेट इट, हमने जो एग्जांपल स्टडी किया ये डिवीजन वाला, तो डिवीजन में क्या किया था नीचे से ऊपर जाते थे, तो यहाँ आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन में ऊपर से नीचे आना है। तो कैसे आंसर लिखेंगे 11001 ब्रैकेट ओवर 2, गेट इट। तो ऐसे हम आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किस में, जब डेसिमल नंबरिंग सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उसमें फ्रैक्शनल नंबर आपको दिए हुए है, फ्रैक्शनल नंबर मींस व्हाट 0 पॉइंट वाले नंबर, तो ये करना है। अगेन हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको इजीली पता चलेगा। तो ये आपको नंबर दिया हुआ है 35.17, तो अब क्या करना है पहले 35 का अलग करना है और 17 का क्या करना है अलग, क्योंकि उसके बीच में क्या है नंबर यहाँ दिया हुआ है, गेट इट। तो अब हम क्या करेंगे, तो आपको जो नंबर दिया हुआ है सबसे पहले 35, गेट इट, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे 35, तो 35 दिया हुआ है तो ऑलवेज हम जो डिवीजन की प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ करना है 2, तो 35 डिवाइड बाई 2 क्या हुआ 17.5, तो ये जो 0.5 आया इसलिए हमको क्या लिखना है 1। फिर 17 डिवाइड बाई 2 क्या हुआ 8.5, तो यहाँ लिखना है 8 और क्या लिखना है 1। अब लिखना है 2, तो क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 8 तो क्या आ जाएगा 8, तो 0। फिर क्या हो जाएगा 2 2 0, अगेन क्या हो जाएगा 1 2 0। फिर क्या हुआ यहाँ 1 आया तो 1 के नीचे क्या लिखना है 0, 1 के नीचे क्या लिखना है 0, यहाँ 2 लिखना है और ये 1 है उसको ट्रांसफर करके यहाँ लिखना है। और ये आंसर कैसे लिखेंगे नीचे से ऊपर लिखेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ हम लिखते हैं कि 1 0 0 0 1 1, फिर क्या हो जाएगा पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाजू वाले हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 0.17, तो यहाँ लाइन करनी है ऐसे, फिर लिखना है 0.17 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.17 मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ 2, तो 0.17 का मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 0.34, तो कैरी क्या आएगी 0। फिर 0.34 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आ जाएगा 0.68, तो अगेन 0, तो 0.68 यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा 1.36, तो 1.36 आया तो 1 जो है वो यहाँ लिखना है, तो हमने 1 लिख दिया तो क्या आ जाएगा 0.36 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा 0.72, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, 0.72 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा 1.44, तो यह 1.44 आया तो 1 आया तो 1 यहाँ लिखेंगे और 0.44 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो क्या आ जाएगा 0.88, तो अगेन 0.88 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा 1.76, तो 1.76 आया तो 1 यहाँ लिखेंगे, 0.76 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 1.56, तो अगेन उसको यहाँ 1 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आता है
सॉरी 76 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1.52, तो 1.52 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आ जाएगा 1.04, तो 1.04 तो यहाँ 1 लिखेंगे, 0.04 को अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.08, तो क्या आता है 0, अगेन 0.08 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2 तो क्या आ जाएगा 0.16, अगेन 0, फिर 0.16 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.32, तो अगेन क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चालू रहता है, गेट इट। तो हमको कहाँ से स्टॉप करना है, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने क्यों स्टॉप किया। तो हमारा मेन सिस्टम क्या है कि लास्ट में क्या जाना चाहिए, जीरो आना चाहिए, गेट इट। लास्ट में क्या जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए, गेट इट। तो हमने क्या किया कि रिपीटेड नंबर स्टार्ट हुए, कैसे, यहां तक ये जो रिपीटेड नंबर है वो कंटिन्यूअसली क्या हुआ, स्टार्ट हुए, गेट इट। तो फिर हमको क्या करना है कि यहाँ स्टॉप करना है, हमको क्या करना है यहाँ स्टॉप कर देना है, और फिर नीचे से ऊपर हमको क्या लिखना है, आंसर लिखना है, नीचे से ऊपर आंसर लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे 0.0, सॉरी ये तो पॉइंट है ही, उसके बाद हम लिखेंगे 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0, गेट इट। तो ऐसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो आंसर आएंगे। तो सबसे क्या करना है, ये दोनों एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल में दोनों आ चुके, एक जो नॉर्मल नंबर है उसका डिविजन और पॉइंट का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, गेट इट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड किए हैं, तो यू विल चेक दैट, गेट इट। तो आज हमने कौन से जो पॉइंट्स है, गेट इट, तो वो हमने कंप्लीट किए। तो आज हमने दो पोर्शन कंप्लीट किए, हेक्साडेसिमल टू द डेसिमल नंबरिंग सिस्टम, दैट मींस के 16 को 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल नंबरिंग सिस्टम टू द बाइनरी, दैट मींस 10 को कैसे 0 2 में कन्वर्ट करते हैं, गेट इट। तो ये जो दो पॉइंट्स है आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है कन्वर्जेशन, गेट इट। तो थैंक यू वेरी मच for joining the sessions. Have a nice day.